Hello everyone, I am Lokesh and welcome back to our channel Online Learning. This video is related to TCS NQT 2024 preparation, how to start preparation for TCS NQT exam, and in this video we will discuss about updated exam pattern and latest syllabus. One of the most important point, this is biggest announcement for all of you. We will share each and every update with all of you that is related to TCS NQT and हम आपको free preparation, free resources, free strategy share करेंगे. Already our team member Sagni cracked the TCS digital examination and interview in 2022 year. So हम आप सभी के साथ interview experience भी share करेंगे and this is a biggest opportunity for 24 batch if you are from BE BTech, ME MTech, MCA, MSc. They are giving 3.6 LPA or 3.3 LPA to 9 LPA plus package. Okay, 11 LPA जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए, बाकी अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए 9 LPA तक का पैकेज है. तो टीसीएस इस बार निंजा डिजिटल प्राइम रोल के लिए हायर कर रही है and already so many candidates selected in our TCS from our channel previously. They are from 22-23 batch. So don't miss this opportunity as well as हम आप सभी को सारे अपडेट्स प्रोवाइड करेंगे. मैं आपको जो सारी स्टेप्स बताऊंगा वो ध्यान रखना है, कैसे स्टार्ट करना है प्रिपरेशन, क्या सारी डिटेल्स है आज की इस वीडियो में देखते हैं. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. And one of the most important point, like if you are from 24 batch and if you are new to our channel, like and share the video. Let's start the video. So in this video we will discuss about free exam and interview preparation, free resources and strategy. उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि हमने TCS की सारी वीडियोस, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की वीडियोस है, ऑफिशियल हायरिंग की वीडियोस है, वो पोस्ट कर दी है. Okay, so you can check that. As well as we already made the playlist for all of you that is related to TCS NQT 2024. Okay, first of all you have to join our telegram group 2024 batch TCS free NQT, in which we will share each and every update. Okay, so don't miss. And our team member Sagnik already cracked this examination in 2023, like 2022, as well as Piyush also cracked the TCS digital exam. Okay, like he gave 2 interview, Ninja and digital. So don't worry about that. As well as in our placement section, you can see on our Instagram that so many candidates received the offer letter from TCS. Okay, आप यहाँ पर सारी डिटेल से जाके चेक कर सकते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाय सर, आई गॉट ऑफर लेटर आफ्टर 23 days फ्रॉम माय इंटरव्यू, योर वीडियोस वर वेरी हेल्पफुल, थैंक यू. ओके, सो यहाँ पर आप सारी चीजें देख सकते हैं कि टीसीएस की एग्जाम कैंडिडेट्स ने क्रैक की है. ओके, सो बहुत अच्छा लगता है कि आपको ऑफर लेटर मिलता है, सारी चीजें होती है. ओके, सो ये बहुत अच्छी बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी, आपको मिस नहीं करनी है. So we are discussing about TCS NQT 2024 exam pattern and syllabus. Okay, this is complete dedicated video of updated syllabus and pattern. So TCS ने इस बार हायरिंग कैटेगरीज में 3 हायरिंग निकाली है, निंजा, डिजिटल एंड प्राइम. निंजा is 3.36 LPA for like basically undergraduate candidate, and for postgraduate candidate 3.5 is the package. Okay, digital is 7 lakh, same as for UG, 7 LPA for BE BTech, and for like postgraduate candidate 7.3 lakh. Okay, and prime package 9 lakh for undergraduate candidates and 11.5 lakh for postgraduate candidate. This is a biggest opportunity that TCS ने आप सभी के साथ यहाँ पर शेयर की है. मैं आपको बताना चाहता हूँ ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको सारी डिटेल्स पता चलने वाली है. लेट्स डिस्कस अबाउट आवर सेकंड पॉइंट, how TCS conduct examination. Okay, what is the format of exam? So basically first is aptitude and coding test. It is a in center. Okay, it is a TCS IN based center, so you have to select one of the center, okay, in the particular cities. After clearing this examination you will receive technical HR MR interview and there is a final offer. Okay, so this is the process that is related to TCS NQT exam. So what about the TCS NQT exam pattern? So in the TCS NQT exam pattern, the exam pattern is quite changed. So in the part A there is a foundation section and in the part B there is a advanced section. So numerical, verbal, reasoning means total aptitude. Okay, aptitude, verbal and reasoning part will be covered in the foundation section. Okay, and like in the advanced section, advanced quant and reasoning ability, advanced coding will be asked. Okay, so advanced quant and reasoning ability level is different. Okay, level is some bit hard. Okay, because यहाँ पर क्या होगा
कि यहाँ पर देखिए आप ये दोनों जो राउंड है आप इन्हें कंप्लीट करेंगे, बेस्ड ऑन द टेस्ट परफॉर्मेंस कैंडिडेट विल शॉर्टलिस्टेड फॉर प्राइम, डिजिटल और निंजा इंटरव्यू। सो आपका ये ओवरऑल परफॉर्मेंस देखा जाएगा, सो दे विल कंसिडर द ओवरऑल परफॉर्मेंस as well as they will consider their sectional cutoff as well as overall cutoff. Okay, totally depends on them. TCS NQT test consisting of foundation and advanced. While all are encouraged to attempt both section, it is mandatory if you are aspire for digital or prime. Okay, so देखिए उन्होंने क्या बोल दिया है, मैंडेटरी तो दोनों है, अगर आपको डिजिटल या प्राइम वाला रोल चाहिए तो सो आपको ये दोनों अटेंड करने ही पड़ेंगे. So the first section is foundation, in which aptitude, reasoning, verbal will be asked, and in the second section advanced aptitude and as advanced quant and reasoning. Okay, and advanced coding is there. So this is the numerical ability syllabus, in which number system, mensuration, arithmetic ability, data interpretation, simplification and approximation, these are the topics. Okay, these are the some of the topics of particular पॉइंट. लाइक न्यूमेरिकल एबिलिटी में ये सारे टॉपिक्स आते हैं. वर्बल एबिलिटी में आपका वर्ड कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन, एरर आइडेंटिफिकेशन, फॉर्मल इनफॉर्मल सेंटेंस, रीडिंग कंप्रहेंशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं. रीजनिंग एबिलिटी में वर्ड पैटर्न बताना, नंबर सीरीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ब्लड रिलेशन, डेटा अरेंजमेंट, डिसीजन मेकिंग, ओके, लॉजिकल वेन डायग्राम, विजुअल एंड स्पेशियल रीजनिंग, ये सारी चीजें आती है. तो दिस इज द प्रीवियस ईयर सिलेबस. ओके, या आप बोल सकते हैं अभी ऑन कैंपस में भी ये सिलेबस फॉलो हुआ था. सो व्हाट अबाउट द एडवांस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एडवांस सेक्शन एंड एडवांस रीजनिंग एबिलिटी, these are the topics that they are mostly covered in the advanced quant aptitude, and the level is some like level is hard. Okay, like medium to hard. Okay, बिकॉज ये अच्छे पैकेजेस के लिए एक मीन्स मान सकते हैं 7 LPA की अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है और एक 9 LPA की अपॉर्चुनिटी मिल रही है. सो डेफिनेटली दे विल चेक योर ऑल ऑफ द नॉलेज दैट इज रिलेटेड टू दैट. आई थिंक इसमें कुछ एरर आ रही है तभी ऐसा हो रहा है. सो ओके, सो फॉर एडवांस क्वांट एप्टीट्यूड ये सारे टॉपिक्स हैं, एडवांस रीजनिंग एबिलिटी के ये सारे टॉपिक्स हैं. यू हैव टू प्रिपेयर ईच एंड एवरी टॉपिक, बट हाउ? ओके, सो एडवांस कोडिंग में आपको 55 मिनट्स मिलेंगे, 2 कोडिंग क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. ओके, सो यू हैव टू सॉल्व. एंड इसमें जो एक कोडिंग क्वेश्चंस रह सकता है वो मान सकते हैं हम अरे या फिर स्ट्रिंग का है, ठीक है, या फिर हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स मान सकते हैं. और सेकेंड क्वेश्चन जो है वो डीएसए या एल्गोरिथम्स का हो सकता है. सो यू हैव टू प्रिपेयर कोडिंग सेक्शन एज वेल. ओके, बहुत अच्छे से आपको कोडिंग सेक्शन प्रिपेयर करना पड़ेगा. अब इसके लिए मैं आपको सबसे पहले स्ट्रेटेजी बताता हूँ, फिर सारी डिटेल्स बताता हूँ. फॉर एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड वर्बल, प्रैक्टिस वेबसाइट इज इंडिया बिक्स. इंडिया बिक्स इज बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी वेबसाइट in which you can directly go, and there are so many questions. Okay, like 1000 plus questions are there of different sections. सो एक RS अग्रवाल सर की बुक आती है, वो भी आप प्रेफर कर सकते हैं, उससे भी आप एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि TCS अच्छे लेवल का थोड़ा एप्टीट्यूड पूछता है, ठीक है. एंड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बताऊंगा, आप हैकर रैंक, हैकर अर्थ, बेसिक प्लस एडवांस प्रोग्राम, या फिर आप लीड कोड भी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है. बट यू हैव टू प्रिपेयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. ओके, यू हैव टू सॉल्व सो मेनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन डेली बेसिस, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छी हो सके. अब बात करते हैं इस सेक्शन के बारे में जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन. ओके, बेसिकली आपने हमें पैटर्न बता दिया, सिलेबस बता दिया, सारी चीजें बता दी, बट अब TCS NQT को कैसे क्रैक करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा. ओके, you have to make schedule in which you have to decide which days you are given to aptitude, which days you are given to coding. Okay, and in a week, okay, in a week आप इंटरव्यू के लिए भी पढ़िए, ठीक है. फॉर ये मैं इंटरव्यू के लिए क्यों बोल रहा हूँ, इसमें आप DBMS, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, आप मतलब थोड़ा इंटरव्यू के लिए भी पढ़िए, थोड़ा HR क्वेश्चंस, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान दीजिए. If you like when you cleared the aptitude and coding examination, next is interview. Suppose आपने वीक में से 7 डेज में से आपने 5 डेज जो है मींस 4 डेज आपने एप्टीट्यूड को दे दिए, ठीक है, 4 डेज आपने एप्टीट्यूड को दे दिए, 2 डेज आपने कोडिंग को दे दिए, एंड 1 डे, तो टोटल हो गए हमारे यहाँ पर 7.
सो आपने इंटरव्यू के लिए दे दी है, तो कुछ इस टाइप से शेड्यूल बनाना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक शेड्यूल in which you have to practice on daily basis of aptitude. Okay, अब यहाँ पर आपको मैं स्ट्रेटेजी बताता हूँ. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. नहीं समझ आ रहा है कि क्वांट के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, तो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट देख लीजिए जाके. ठीक है, मतलब यूट्यूब पे बहुत सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जिसमें आपको क्वांट के बारे में बताया जाएगा कि क्वांट के लिए आप कैसे पढ़ सकते हैं, क्वांट की क्या ट्रिक्स होती है. बेसिकली यू हैव टू लर्न द ट्रिक्स and solve so many previous year question. It will increase your like speed as well as quant में speed बहुत मैटर करती है. वर्बल और रीजनिंग के लिए, वर्बल तो एक बहुत मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन होता है, रीजनिंग में आपको टाइम लगेगा, तो रीजनिंग और वर्बल को आपको ऐसे पढ़ना है जैसे कि आप टॉपिक्स लेते जा रहे हैं. ओके, आपको डे वाइज टॉपिक्स को चूज करना है. ओके, यू हैव टू चूज द टॉपिक्स ऑन डे वाइज एंड कंप्लीट क्वेश्चंस ऑन डेली बेसिस. ओके, सॉल्व करना है. आई थिंक कुछ एरर आ रही है, हम एक काम करते हैं इसी पे रहते हैं. ओके, सो आपको यहाँ पर क्या करना है, टॉपिक से चूज करना है. टॉपिक से चूज करना है कौन कौन से टॉपिक्स आपको आज पढ़ने. ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स आप कल करेंगे. आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत सॉल्व करने, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना आपका बेनिफिट होने वाला है. फॉर कोडिंग, कोडिंग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है. और आप थोड़ा मतलब आप कोई भी एक प्लेटफॉर्म लीजिए, आप डेली प्रैक्टिस कीजिए कोडिंग की. ठीक है, मान लीजिए अगर आप 2 दिन देते हैं तो 2 दिन में तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. बट अगर आपकी अभी डेली प्रैक्टिस में नहीं है कोडिंग, तो अभी से प्रैक्टिस में लाइए, क्योंकि ये इन सेंटर टेस्ट होने वाला है. आपका एप्टीट्यूड और कोडिंग निकलना बहुत जरूरी है. ठीक है, सो आपको अच्छे रोल की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी. एंड इंटरव्यू के लिए आप डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, एचआर क्वेश्चंस, ओके, ओएस, फिर आप थोड़ा डीएस भी पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क भी आप अगर बेसिक पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है. सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको जितना हो सकता है आपको सॉल्व करना है. देखिए, अगर मैं मानूं कि आज से मेरे पास 1 महीना है, ठीक है, जैसे हम 26 अप्रैल शायद एग्जाम डेट है, सो हम मान लेते हैं कि हमारे पास 1 महीने से भी कम है. ठीक है, या हम मान लेते हैं हमारे पास 20 to 25 डेज है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक वन शेड्यूल. ओके, लाइक हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है डेली बेसिस पे, जिससे कि हम हमारी प्रैक्टिस अच्छी कर सकें. इसी के साथ साथ कोडिंग के लिए हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगी. आप प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस करें, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें, बहुत अच्छा रहेगा. इंटरव्यू के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स, इन सब पे ध्यान दीजिए, आपके लिए ही हेल्पफुल होने वाला है. सो डेफिनेटली यू कैन क्रैक द TCS NQT एग्जाम. If you have any queries regarding TCS NQT exam, you can ask in the comment section or DM me on Instagram. This all videos are for all of you. We want support from all of you. And I hope this video is useful for everyone. If you have any kind of doubt, let me know that in the comment section. Soon we will share one video that is related to roadmap for TCS NQT examination. Thanks for watching the video.